Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all. My name is Kashif Mazhar and I am the subject teacher of English for class 6th. During the last week, we learned about adverbs and its different kinds. We also talked about past continuous tense, learned about its structure and about its conversion into passive voice. During this week, we will be doing our unit number 4, the toy box. We shall do its exercise A1, B1, B2, B3, B4, C1, C2 and C3. I want you all to mark all these exercises on your textbook so that it becomes easier for you to decide which exercises of the unit you need to prepare for your exams. The SLOs for today, beta. After going through today's lecture, the students will be able to comprehend the story The Toy Box. आप टॉय बॉक्स की कहानी को समझ पाएंगे कि ये किस बारे में है. Practice writing the summary of a given passage. If you are provided with the passage and you are asked to write its summary, you will be able to do so. And number 3, add up some new words to their vocabulary. You will be able to add some new words to your vocabulary which you may use in your writing then while you speak or talk to others. I'm going to read out a summary of the toy box so that you have a good idea about the story. It is interesting and full of suspense at the same time. There are only 5 characters in this story. The narrator's name is Tom, who has shifted to a new house along with his sister Matilda and his parents. The story begins when the family has arrived at the new house in their vehicle. Let's go through the summary now. Father stopped the car, and the tires made a pleasing sound. He asked Matilda and me not to open our eyes until he asked us to do so. वालिद ने गाड़ी रोकी और गाड़ी के पहियों ने एक बहुत खुशगवार सी आवाज़ पैदा की. उसने मैटिल्डा और मुझे कहा कि हम अपनी आंखें ना खोलें जब तक वो ऐसा करने को हमें ना कहे. Mother had told us a week ago that a new house had been managed and the whole family was about to move there. माँ ने हमें तकरीबन एक हफ़्ता पहले ये बताया था कि एक नए घर का इंतज़ाम हो गया और अब पूरा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल होने वाला है. The new accommodation had magnificent garden in which the birds flew here and there and the bees buzzed about the flowers. नई रिहाइश में एक बहुत शानदार बाग था जहाँ परिंदे इधर उधर उड़ते फिरते थे और शहद की मक्खियाँ फूलों के इर्द गिर्द भिनभिनाती थीं. As the suspense became intolerable, father asked us to open our eyes, stopping the car with a halt. जब हमारे लिए तजस्सुस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो वालिद ने हमें अपनी आंखें खोलने को कहा जब गाड़ी एक झटके से रुक गई. Matilda considered the house beautiful while I found it scary. Matilda को घर देखने में खूबसूरत लगा जबकि मुझे ये खौफजदा कर देने वाला दिखाई दिया. The mansion was quite high. ये इमारत बहुत बड़ी थी, ऊंची थी. Father told us that there was plenty to discover. वालिद साहब ने हमें बताया कि यहाँ खोजने को, नई चीज़ें दरियाफ्त करने को बहुत कुछ है. All the other family members went straight inside, but I followed them a little later. घर के तमाम अफराद फ़ौरन ही घर के अंदर चले गए जबकि मैं उनके पीछे कुछ देर बाद गया. Mother told us that our bedrooms were upstairs and there was a large room on ground floor which we could use as our playroom. माँ ने हमें बताया कि हमारे कमरे ऊपर की मंजिल में थे और घर के ग्राउंड फ्लोर पे यानी पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जिसे हम अपने खेल के कमरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे. द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज बट इट वॉज कोल्ड एंड डैम्प. खेल का कमरा देखने में वाकई बहुत बड़ा था लेकिन वहाँ ठंड थी और नमी भी. Slide number 6 बेटा. Father told us that the heating system had been turned off as no one had lived there for quite some time. वालिद ने हमें बताया कि
हीटिंग सिस्टम जो है उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ अरसे से इस घर में कोई नहीं रह रहा था। आ, जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, दे हैव internal heating system and air conditioning system which they on and off with the help of a single button beta. They press that button and the heating system gets on and then it gets off, and likewise is the matter with the air conditioning system. He provoked us to explore all the rooms. उन्होंने हमें इस बात पर उकसाया कि हम सब के सब कमरे खोजें, दरियाफ्त करें. We went upstairs and downstairs and then returned to our playroom. हम ऊपर गए और नीचे उतरे और फिर हम अपने प्ले रूम में चले गए, खेल के कमरे में चले गए. मैटिल्डा अनपैक द टॉय बॉक्स. मैटिल्डा ने खिलौनों वाला जो डब्बा था वो खोला. टुक आउट द टॉय शी नीडेड. फिर वो खिलौने निकाले जिनकी उसे ज़रूरत थी. एंड देन वेंट टू आंसर द कॉल फ्रॉम मदर. और फिर माँ के बुलाने पर चली गई. आई वॉज अलोन इन द लार्ज रूम. मैं बड़े से कमरे में अकेला रह गया. व्हेन आई हर्ड अ फीबल क्राई फॉलोड बाय अ मोन फॉर द फर्स्ट टाइम. जब मैंने एक बारीक सी चीख की आवाज़ सुनी और उसके फ़ौरन बाद किसी के कराहने की आवाज़. आई थॉट इट टू बी अ कैट और जस्ट माई इमेजिनेशन. मैंने तस्वर किया कि शायद ये कोई बिल्ली थी या मेरा तस्वर. I took a couple of toys from the toy box when I heard the cry again and fled out of the room screaming. मैंने टॉय बॉक्स से खिलौने के वो संदूक से कुछ दो तीन खिलौने निकाले जब मुझे वो चीख की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और मैं चिल्लाता हुआ चीखता हुआ कमरे से भाग खड़ा हुआ. आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा इन माई बेडरूम. मुझे माँ और मटिल्डा दोनों अपने बेडरूम में नजर आए. मदर वॉज ओपनिंग अ स्मॉल बॉक्स. माँ एक छोटा सा बॉक्स खोल रही थी. आई हर पुट अवे सम क्लोथ्स इन अ कबर्ड. मैंने कुछ कपड़े एक अलमारी में रखने में उनकी मदद की. दैन आई स्टॉप्ड बाय अ विंडो एंड लुक्ड एट द गार्डन आउटसाइड. फिर मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ और बाहर बाग की जाने देखा. इट वॉज फ्रेश एंड वार्म आउट. बाहर ताजगी थी और हिद्दत भी. एंड आई वॉन्टेड टू बी देयर. और मैं बाग में जाना चाहता था एंड नॉट इन द हाउस. और घर में नहीं रहना चाहता था वेर इट वॉज कोल्ड एंड स्टेन साउंड, जहाँ ठंड थी और अजीबो गरीब आवाज़ें. नेक्स्ट स्लाइड बेटा. मदर ट्राइड टू नो द कॉज ऑफ माई साइलेंस. माँ ने मेरी खामोशी की वजह जानने की कोशिश की. आई टोल्ड हर दैट आई डिडंट लाइक द हाउस एज इट वॉज कोल्ड एंड स्पूकी. मैंने माँ को बताया कि मुझे घर इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि यहाँ ठंड थी और ये डरा देने वाला, खौफजदा कर देने वाला था. दैन आई टोल्ड हर अबाउट द वॉइस आई हर्ड फ्राम टॉय बॉक्स. फिर मैंने उसे उन आवाज़ों के बारे में बताया जो मैंने टॉय बॉक्स से सुनी थी. मदर डिडेंट बिलीव मी. माँ ने मेरी बात का यकीन ना किया. एंड द होल फैमिली वेंट टू द प्ले रूम. और पूरा ख़ानदान प्ले रूम में आ गया. वी डिडेंट हेयर एनीथिंग दिस टाइम. इस दफ़ा हमने कोई आवाज़ ना सुनी. मदर थॉट दैट द वॉइस मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड. माँ ने सोचा कि आवाज़ें यकीनन बाहर से आई होंगी और परहैप्स इट वॉज अ गर्गलिंग पाइप. और शायद ये कोई ऐसा पाइप था जिसमें से पानी गुजरा था. गर्गलिंग पाइप बेटे सीवरेज पाइप्स होते हैं. व्हेन we use water and the water passes through them, it produces a gurgling sound. जैसे गरारे करने की आवाज़ होती है उस तरह की वो आवाज़, वो साउंड जो है वो उस पाइप में से, जब उसमें से पानी गुजर रहा होता है, उसमें से पैदा होती है. बट आई सेड फोर्सफुली दैट इट वॉज अ क्राई फॉलोड बाय अ मोन. और लेकिन मैंने शिद्दत से कहा कि ये चिल्लाने की आवाज़ थी जिसके बाद किसी के कराहने की आवाज़ भी आई थी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले चांद दिन, द होल फैमिली सेटल्ड इन द न्यू हाउस. पूरा ख़ानदान नए घर में सेट हो गया. बट आई वॉज नॉट एट कम्फर्ट एट ऑल. लेकिन मुझे किसी भी तरह सुकून नहीं था. वैन आई स्टेप्ड इन साइड द प्ले रूम. जब भी मैं खिल के कमरे में कदम रखता, आई हर्ड द स्ट्रेंज साउंड्स. मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती. बट वैन द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ट्राई टू हियर एनी थिंग. लेकिन जब घर के दूसरे अफराद कुछ सुनने की कोशिश करते, दे हर्ड नथिंग. तो उन्हें कुछ सुनाई ना देता. Everyone was getting annoyed at me. हर किसी को मुझ पर गुस्सा आ रहा था. They thought I was making up stories to catch their attention. उनका ये ख्याल था कि मैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कहानियाँ बना रहा था, कहानियाँ घड़ रहा था. मैटिल्डा blamed me for the bad mood of the parents. मैटिल्डा ने वालदैन के बुरे मिजाज के लिए मुझे कसूरवार ठहराया. And she thought, और उसका ख्याल था, that we could lose the playroom, कि हम खेल के कमरे से महरूम हो सकते थे. इफ़ आई केप्ट ऑन बिहेविंग लाइक दिस, अगर मैं अपने इस रवैये और सलूक को जारी रखता. स्लाइड नंबर 8 बेटा.
Stayed away from the room for 3 days. मैं 3 दिन कमरे से दूर रहा, but then I decided to solve this mystery and not scream. लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस राज को जाहिर करूं, इसको हल करूं और चिल्लाऊं नहीं. Not has been capitalized in the book as well, and I have capitalized it here as well, beta. It is because the writer wants to lay emphasis on the word not. मतलब वो शिद्दत पैदा करना चाहता है, वो ज़ोर देना चाहता है नहीं के लफ्ज़ पर. यानी टॉम वॉज डिटर्मिन्ड नॉट टू स्क्रीम. टॉम ने इरादा कर लिया था कि वो चिल्लाएगा नहीं. द वर्ड आई हैज़ बीन यूज्ड फॉर टॉम. आई का लफ्ज़ जो है ये टॉम के लिए इस्तेमाल हुआ है इस पूरी कहानी में. आई वेंट नियर द टॉय बॉक्स. मैं टॉय बॉक्स के करीब गया एंड हर्ड अ क्राई, और वहाँ मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी. आई डिडंट स्क्रीम एंड वेंट आउट टू फाइंड मदर. मैं इस दफ़ा नहीं चिल्लाया और माँ को तलाश करने के लिए बाहर गया. आई फाउंड हर एंड मटिल्डा इन द किचन. मुझे वो और मटिल्डा बावर्ची खाने में मिले. आई आस्क्ड देम टू फॉलो मी. मैंने उनसे कहा कि मेरे पीछे आए. वी वेंट नियर द टॉय बॉक्स. हम टॉय बॉक्स के करीब गए. वी हर्ड हर क्राई, सम बम्बलिंग एंड देन एन अडल्ट वॉइस. हमने कुछ चीखने की आवाज़ सुनी, उसके बाद कुछ लो आवाज़ में. मम्बलिंग होता है बेटा टू स्पीक इन लो वॉइस, धीमी आवाज़ में बात करना, जैसे सरगोशी में कोई बात करता है. एंड देन एन अडल्ट वॉइस, और फिर किसी मर्द की, बड़े मर्द की आवाज़. आई स्क्रीम्ड वंस अगेन. मैं एक दफ़ा फिर चिल्लाया. वी ट्राई टू हेयर साइलेंटली बट वी डिडंट हेयर एनीथिंग फर्दर. हमने खामोशी से सुनने की कोशिश की लेकिन हमें मज़ीद कुछ सुनाई ना दिया. फादर केम अब्रप्टली एंड आस्क्ड अबाउट द मैटर बट मदर आस्क्ड हिम टू रिमेन साइलेंट. वालिद फ़ौरन वहाँ आए और उन्होंने मामला जानने की कोशिश की लेकिन वालदा ने उन्हें खामोश रहने को कहा. वी ऑल वेंट टू लिविंग रूम वेयर शी एक्सप्लेंड एवरीथिंग टू फादर. हम सब अपने रिहाइश के कमरे में गए, सोने वाले कमरे में गए, और फिर उन्होंने वालदा ने हर बात वालिद को बताई. फादर लेफ्ट द रूम टू इन्वेस्टिगेट. वालिद कमरे से तफ्तीश की गर्ज से बाहर निकल गए. वी हर्ड हिम ड्रैगिंग द टॉय बॉक्स. हमने सुना कि वो टॉय बॉक्स को घसीट रहे थे. Then he returned and told us that we should investigate the coal bunkers and store rooms. फिर उन्होंने वो वापस आए और उन्होंने कहा कि हमें कोल बंकर्स बेटे जहाँ पे ये ईंधन की कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ख़ीरा की जाती हैं, ठीक है. एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन कोल बंकर. यूजली कोल बंकर्स को कोल बंकर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ कोल यानी कोयला ज़ख़ीरा किया जाता था. ही सिलेक्टेड अ गोल्फ क्लब. उन्होंने गोल्फ खेलने वाली एक स्टिक, एक डंडा जो है उसका इंतखाब किया. एंड देन वी ऑल वेंट टू द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम. और फिर हम सब घर के उस हिस्से में चले गए जो कि मुत्तसिल था, जो कि जुड़ा हुआ था प्ले रूम से. यानी दे वेंट आउटसाइड थ्रू द गार्डन. दीवार की जानब गए जहाँ कमरे की बैरूनी दीवार थी प्ले रूम की. स्लाइड नंबर 9 बेटा. देयर वॉज रबिश ऑल अराउंड. हर तरफ कूड़ा क्रिकेट था. फादर मेड हिज वे थ्रू द मैस. वालिद ने इस कूड़े में से रास्ता बनाया. एंड वी कुड सी 2 विंडोज ले डाउन ऑन द वॉल एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू व्हाट लुक्ड लाइक अ सेलर डोर. और फिर हमने देखा कि 2 खिड़कियां जो हैं वो एक दीवार से टिकी हैं और कुछ सीढ़ियाँ जो नीचे जा रही हैं और यूँ दिखाई देता था जैसे वो किसी तय खाने के दरवाजे की तरफ जा रही हैं. सेलर इज़ एन अंडरग्राउंड रूम बेटा, जिसे तहखाना कहा जाता है. ही नॉक्ड आस्किंग इफ समवन वाज देयर. उन्होंने दस्तक दी ये पूछते हुए कि क्या कोई वहाँ था. देयर वाज नो आंसर. कोई जवाब ना आया. देन द डोर ओपनड एंड वी हर्ड द fearful voice of a woman who told us that she and her family lived in the cellar for some weeks as they found the place empty. फिर उन्हें एक दरवाज़ा खुला और उन्हें एक औरत की खौफजदा आवाज़ सुनाई दी जिसने उन्हें बताया कि वो और उसका ख़ानदान इस तय खाने में कुछ हफ्तों से क़याम पजीर था क्योंकि उन्होंने इस जगह को खाली पाया कि यहाँ कोई नहीं रहता था, लिहाजा वो इस जगह रहने लगे. आई थॉट दैट द मिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेंज साउंड वॉज फाइनली सॉल्व. मैंने सोचा कि शायद ये जो मिस्ट्री थी, अजीब व गरीब आवाज़ों की जो मिस्ट्री थी, इसका जो राज था वो आखिर हल हो गया था. मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड विद हर लव एंड केयर द सिकनिंग चाइल्ड ऑफ द वुमन रिकवर्ड. माँ ने फ़ौरन सूरत हाल को संभाल लिया और फिर उनकी मोहब्बत और तवज्जो से उस औरत की बीमार बेटी कुछ ही अरसे में सेहतियाब हो गई. वी एम्प्लॉयड द वुमन इन द हाउस एंड हर हस्बैंड वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन. हमने उस औरत के
को घर पे मुलाजिम रख लिया और उसके खामंद को माली और मददगार के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई। द कोल बंकर्स एंड द स्टोर रूम्स वर क्लीन्ड। ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले कमरे और दूसरे स्टोर रूम जो हैं वो साफ़ किए गए। द रबिश वॉज रिमूव्ड, कूड़े को हटा दिया गया। एंड द हाउस बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग प्लेस टू लिव इन। और फिर घर एक ऐसी पुरसकून और गर्म जगह बन गया जहाँ अब रहा जा सकता था। With this, we come to an end of our summary, beta. Here is a list of some difficult word that you may come across for the very first time. These are the words meaning that are other than the words to know list given in the beginning of your unit number 5, the toy box. ये मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त उन अल्फाज के अलावा है जो आपके यूनिट के स्टार्ट में दी गई हैं. So let's go through them, beta. ग्रेवल, द फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रेवल. रॉक फ्रेगमेंट्स एंड पेबल्स, छोटी छोटी कंकरियाँ या पत्थर, इनसे अमूमन रास्ता बनाया जाता है. अकोमोडेशन, लॉजिंग हाउस, रिहायशी घर जहाँ कोई ठहरता है, कोई फैमिली रहती है. ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, यहाँ इससे मुराद फूल हैं. रैम्बलिंग, स्प्रेडिंग आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन. मैंशन से रिलेटेड ये रैम्बलिंग हाउस, रैम्बलिंग मैंशन के हवाले से ये वर्ड है. रैम्बलिंग, स्प्रेडिंग आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाना. यानी घर जिस पे टॉम और उसकी फैमिली है वो इतना बड़ा था कि बहुत सारी सिमतों में फैला हुआ दिखाई देता था. मैंशन, अ लार्ज हाउस. मैंशन एक बड़े घर को कहते हैं. स्पूकी, फ्राइटनिंग एंड फेयरफुल, डरा देने वाली, खौफजदा कर देने वाली चीज़. एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, पुरजोश. स्पीशियस बेटा वाइड को कहते हैं, यानी खुला, वसी व अरीज. नेक्स्ट, अम्टीन. अम्टीन मैनी को, सेवरल बहुत सौ को कहते हैं. समंट, कॉल्ड को, बुलाने को. फीबल कहते हैं बेटे वीक, यानी कमज़ोर को. मोन, ग्रोन, कराहना, तकलीफ़ या दर्द से जो आवाज़ निकलती है उसे मोनिंग या ग्रोनिंग कहा जाता है. मटर, टॉक इन अ लो वॉइस. मम्बलिंग भी बेटा इसी का सिनोनिम है. इन दोनों का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना या बुड़बुड़ाना जिसे कहा जाता है. गागलिंग, फ्लोइंग इरेगुलरली, अमूमन लिक्विड वगैरह का बेतरतीबी से किसी पाइपलाइन से गुजरना और जो आवाज़ पैदा होना होता है उसे गागलिंग कहते हैं. गागलिंग गरारे करने को भी कहते हैं. यू टेक हॉट वाटर इन विच यू हैव सॉल्ट मिक्सड इन वाटर, और फिर आप उसको गला ठीक करने के लिए उसके गरारे करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गर्गलिंग. मस्टी, अनक्लीन स्मेलिंग, यानी नामुनासिब, नाखुशगवार बू. ड्रॉट, अ करंट ऑफ एयर, हवा की लहर. नेक्स्ट बेटा, कॉशियसली, केयरफुली, एहतियात से. एब्रप्टली, क्विकली, अचानक या तेज़ी से. एयरवेंट, अ होल फॉर स्केप ऑफ एयर, हवा वगैरह के अखराज के लिए बनाया गया सुराख. डेब्री, दिस वर्ड इज़ नॉट डेब्रिस बेटा. द correct pronunciation of this word is debris. Okay, RISREE की साउंड एक्चुअल देता है. डेब्री, जंक या रबल. मलबा, इमारत वगैरह जब तबाह हो जाती है या उसे गिरा दिया जाता है, जो उसका टूटा फूटा मटेरियल बाकी बच जाता है, उसे हम डेब्री या रबल या जंक कहते हैं. रेनोवेटेड, डेकोरेटेड, सजाना. क्लैम्बर्ड, क्लाइंब ऑकवर्डली, अजीबोगरीब अंदाज में चढ़ना. सॉफ्ट, वीपिंग, रोना, और अमूमन सिसकियाँ भरते हुए रोना. हैंडीमैन, अ मैन स्किल्ड इन ऑड जॉब्स एंड स्मॉल टास्क, ऐसा आदमी जो ऑड जॉब्स यानी जो घर में मुलाजमों के, नौकरों के जो काम होते हैं उनमें करने में महारत रखने वाला इंसान. और स्मॉल टास्क या छोटे मोटे काम करने वाला इंसान. We came to an end of our lecture today, beta. Let's revise the main points of the unit. Tom's family moved to a new house in their vehicle. वो एक नए घर में अपनी गाड़ी में आए. Matilda found the house beautiful, while for Tom it was spooky and scary. Matilda को घर खूबसूरत लगा, Tom के लिए ये डराने वाला, खौफजदा कर देने वाला था. Tom first heard the crying and moaning when he was alone in the playroom. Tom ने पहली दफ़ा चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ उस वक्त सुनी जब वो अपने खेल के कमरे में अकेला था. टॉम टोल्ड हिज फैमिली अबाउट द स्ट्रेंज वॉइसेस. टॉम ने अपने घर के अफराद को अजीब आवाज़ों के बारे में बताया. बट दे थॉट ही वॉज मेकिंग अप स्टोरीज, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि वो कहानियाँ बना रहा था. नंबर 5, टॉम डिसाइडेड टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स हिमसेल्फ एंड नॉट स्क्रीम. टॉम ने फैसला किया कि वो इन अजीबोगरीब आवाज़ों के राज को खुद हल करेगा और चिल्लाएगा नहीं. हिज फादर डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द होल मैटर. उसके वालिद ने फैसला किया
कि वो पूरे मामले की ख़ुद तफ्तीश करेंगे। द फैमिली डिस्कवर्ड एन एयर वेंट बिलो द टॉय बॉक्स। घर वालों को टॉय बॉक्स के नीचे एक एयर वेंट, एक हवा के अखराज का सुराख दिखाई दिया। देयर वाज अ सेलर इन विच अ पुअर फैमिली हैड फाउंड शेल्टर। नीचे एक तह खाना था जिसमें एक गरीब ख़ानदान पनाह हासिल कर चुका था। द फैमिली एम्प्लॉयड द वुमेन एज अ मेड एंड हर हस्बैंड एज अ गार्डनर एंड अ हैंडीमैन। टॉम के घर के अफराद ने खातून को घरेलू नौकरानी मुलाजमा के तौर पर रख लिया, जबकि उसके खामन को माली और मददगार फ़र्द के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई। We came to an end of our lecture, beta. I thank you all. There is an assignment of making sentences right after this lecture. I want you to complete the assignment and send it to me today or before 9 a.m. tomorrow. Stay blessed. Allah Hafiz.